नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान और गुजरात में बढ़ रहे हैं चांदीपुरा के केस, बच्चों की संदिग्ध मौत से बड़ी दहशत। सूरत में सरकारी अनाज में कीड़ों की भरमार, अनाज की हकीकत से लोग सकते हैं। और वडोदरा में कौमी एकता के साथ मने त्योहार, विठलनाथ जी की शोभा यात्रा और ताजिया जुलूस का आयोजन। गुजरात के अलग अलग शहर जिलों में चांदीपुरा वायरस के संदिग्ध मामले सामने आ रहे हैं। महिसागर जिले के लूनावाड़ा में इस वायरस ने एक बच्चे की जान ली होने की खबर सामने आई है। लूनावाड़ा के जूना राबड़िया गांव में 5 साल की बच्ची में चांदीपुरा वायरस के संदिग्ध लक्षण देखे गए थे, जिसे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग टीम बनाकर जूना राबड़िया गांव में सर्वे शुरू कर दिया है। चांदीपुरा के संदिग्ध लक्षण महिसागर जिले में देखे जाने से स्वास्थ्य विभाग यहां हरकत में आ गया है। 2-4 દિવસ પહેલા જાનવી નામની દીકરી છે 5 વર્ષની, એને ઠંડી તાવના લક્ષણો હતા તો દવાખાને દવા કરાવી, પીએચસી ખારોલની અંદર પણ બતાવવામાં, ત્યારબાદ ના આરામ થતા આગળ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા, ત્યાંથી પણ આરામ ન થતા અમદાવાદ સિવિલની અંદર રિફર કરવામાં આવી। ત્યાં જતાં ત્યાંના ડોક્ટરો દ્વારા ચેક કરતા એમને ચાંદીપુર નામના લક્ષણો આવતા દેખાતા જિલ્લા વહીવટી તંત્રની જાણ કરવામાં આવી। જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા રાબડિયા ગામની છેલ્લા 3-4 દિવસથી મુલાકાતો લઈ જમીનના સેમ્પલ અને એ જે જગ્યાએ બનાવ બનેલો છે તે ભાઈની આર્થિક પરિસ્થિતિ પણ નબળી છે અને કાચું મકાન છે ગાર માટીથી ચણેલું, એટલે એના પણ સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે। લુણાવાડા તાલુકાના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખારોલના જૂના રાબડિયા ગામે એક 5 વર્ષની બાળકીને ચાંદીપુરમ વાયરસના શંકાસ્પદ લક્ષણો જણાતા તેને અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે રિફર કરવામાં આવ્યા હતા। તારીખ 14/7/2024ના રોજ એ બાળકીનું મૃત્યુ થયું છે। આ માટે સદર વિસ્તારમાં આરોગ્યની ટીમો બનાવીને ઘેર ઘેર એન્ટીલાર્વલ એક્ટિવિટી, ટેસ્ટિંગ કામગીરી, ક્લોરિનેશન કામગીરી તથા સર્વેલન્સ કામગીરી આવી रही है અને अन्य आवा लक्षणों वाला कोई केस जણાય तो तरत ज आरोग्य केंद्रનો संपर्क करवा जણાवવામાં આવ્યું છે। गुजरात मॉडल के बड़े बड़े दावे सरकार की ओर से किए जाते हैं, लेकिन गुजरात मॉडल की पोल बार बार सरकार खुद ही खोल देती है। केंद्र और राज्य सरकार गरीबों को सस्ते दाम में अनाज देने का दावा करते हैं और सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को मध्याह्न भोजन के लिए अनाज पहुंचाया जाता है, लेकिन सरकारी अनाज की ऐसी स्थिति देखकर आप सकते में आ जाएंगे। ये वीडियो गुजरात के सूरत के सबसे बड़े सरकारी गोदाम की है। सूरत के सचिन में सरकारी अनाज संग्रहित करने के गोदाम में सरेआम लापरवाही दिख रही है। यहाँ अनाज की बोरियों की संख्या से कई गुना ज्यादा कीड़े अनाज की बोरियों पर और जमीन पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। बात सिर्फ यही पर नहीं अटकती है, ये कीड़े अगल बगल की सोसाइटीज के लोगों के लिए भी सिरदर्द बने हुए हैं। ऐसे में आक्रोशित महिलाओं ने गोदाम में पहुंचकर गोदाम की स्थिति मीडिया के सामने उजागर की। એકલી ગંદકી છે, ગંદકી ચોખ્ખાઈ નથી, ગંદકી છે એક પ્રકારની। અરે સમસ્યા એક જ છે, આ ગોડાઉન છે સચિન વિસ્તારમાં આરોગ્ય સરકારી ગોડાઉન છે, સરકારી અનાજનું ગોડાઉન છે। ત્યાં રોજ સાંજ પડે 5-6 વાગે એટલે બધા જીવડા આજુબાજુની સોસાયટીમાં ફેલાઈ જાય। આખી રાત હેરાન કરે છે અમને, ખાવામાં આવે, પીવામાં આવે, નાકમાં ઘૂસી જાય, આંગણવાડીમાં અનાજ જાય, સરકારીમાં અનાજ જાય ને આવું અનાજ અમારે અહીંયા અમને આ ગોડાઉન જ નહીં જોઈતું નથી। यहाँ रहने वाले लोग यहाँ से सरकारी गोडाउन हटाने की मांग कर रहे हैं। जब इस मामले सरकारी गोदाम के अधिकारियों से बातचीत की गई, तब उन्होंने लीपापोती की पूरी कोशिश कर कहा कि हम दवाई का छिड़काव करते रहते हैं। આજુબાજુના રહેવાસીઓની એવી ફરિયાદો છે ઘણા સમયથી કે જે અનાજની અંદર જે ધનડા પડે છે જીવાતો, એ અહીંયાથી ઉડીને એમના ઘર તરફ આવે છે, એમના અનાજ ખરાબ થાય છે। રોજિંદી જિંદગીની અંદર પણ તકલીફો ખૂબ જ થઈ રહી છે। એના લીધે એમની ફરિયાદો એમણે મૌખિક પણ આપી અને લેખિતમાં પણ આપી હતી। બરોબર, અમારા ગોડાઉનના જે અનાજ જાળવણીના પ્રોટોકોલ પ્રમાણે
જે એજન્સી મારફત આપણે દવા છંટાવવાની હોય, ફ્યુમિગેશન કરાવવાનું હોય, એ સમયે સમયે આપણે કરાવીએ જ છીએ. આ બધી રજૂઆતો ઉપર સાહેબને પણ કરી છે અને એમના તરફથી પણ જે સૂચનો મળ્યા એ મુજબ આપણે કામગીરી કરી છે. બરાબર. પણ જથ્થાનું જે રોટેશન છે છેલ્લા 2-3 મહિનાથી આપણી પાસે જથ્થો ઘણા પ્રમાણમાં આવેલો છે. બરાબર. એનું રોટેશન જે સ્પીડથી થવું જોઈએ એ એના કરતાં થોડુંક ઓછું છે, જેના કારણે 1-2 મહિનાની અંદર આ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન આવી જશે. બરાબર. આ ચોમાસાની ઋતુ છે, આ સમયમાં મહત્તમ પ્રજનન એ લોકોનું જોવા મળતું હોય. અહીંયા દવાનો છંટકાવ થાય એટલે મોટે ભાગે એ લોકો સ્થળાંતર કરીને બીજી કોઈ જગ્યાએ જાય. બરોબર. ગઈ વખતે અમે લોકોએ જે દવા છંટકાવ કરી અથવા તો જે ટીકડીઓ મૂકી પાવડર છંટાવ્યો એમના પ્રેમાઇસિસ તરફથી છંટાવ્યો, જેથી કરીને જીવાતો એ તરફ ક્રોસ કરીને ના જાય. અમારાથી બનતા પ્રયાસો કર્યા જ છે. હવે મેં એમને બાંયધરી આપી છે કે અમે ફ્રીક્વન્સી વધારી દઈશું. બરોબર. અને ઝડપથી જથ્થાનું રોટેશન કરીએ ટીફો પદ્ધતિથી, એટલે આ તકલીફોનું નિવારણ ટૂંક સમયમાં આવી જશે. अब आप सोचिए कि गरीबों को अनाज देने का दावा तो सरकार करती है, लेकिन कैसा अनाज दे रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन कराया जाता है। अगर ये भोजन इस अनाज से बना हुआ हो तो बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या असर होगा, ये सोचना भी मुश्किल है। यह अनाज तो खराब हो ही रहा है, साथ ही लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। गुजरात का वडोदरा शहर जो संस्कारों की नगरी, उत्सवों की नगरी और धर्म की नगरी, यहाँ सालों से महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के समय से कुछ त्योहार मनाए जाते हैं, कुछ खास त्योहार जिसकी परंपरा आज भी वडोदरा शहर ने कायम रखी है। आज देवशयनी एकादशी पर कहा जाता है कि भगवान 4 महीने के लिए सो जाते हैं और इस खास मौके पर वडोदरा शहर में विठलनाथ जी भगवान की शोभा यात्रा आयोजित होती है। ये देवस्थान मांडवी का जो गायकवाड़ परिवार द्वारा संचालित है, वहां से आज भगवान विठलनाथ जी की पूजा कर उनकी शोभा यात्रा का प्रस्थान करवाया जा रहा है। भगवान विठलनाथ जी की पूजा अर्चना के साथ आरती हो रही है, जहां राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़ और महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़ की दोनों बेटियां मौजूद हैं, जो पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना कर रहे हैं। देवशयनी एकादशी के मौके पर यह विशेष परंपरा हर साल वडोदरा और वडोदरा का गायकवाड़ परिवार निभाता आया है, जिसमें सोने चांदी के रथ में सवार होकर भगवान खुद नगर भ्रमण पर निकलते हैं। दिन भर अलग अलग धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन होते हैं, हरिहर का मिलन होता है और उसके बाद शोभा यात्रा जो है, भगवान जो है अपने मंदिर वापस लौट जाते हैं। वडोदरा के अग्रणी भी इस धार्मिक परंपरा में जरूर से शामिल होते हैं। भगवान को सोने चांदी के रथ में विराजमान किया जाएगा। भगवान को अपने मंदिर से पूजा अर्चना के बाद बाहर लाया जा रहा है और भगवान की शोभा यात्रा का मांडवी से प्रारंभ हो रहा है। ये शोभा यात्रा MG रोड से निकलकर जुबिली बाग, रावपुरा, आराधना सिनेमा से होते हुए कीर्ति मंदिर के कंपाउंड में स्थित केदारेश्वर महादेव मंदिर पहुंचती है, जहां हरिहर का मिलन होता है। भगवान विठलनाथ जी को विधिवत रूप से सोने चांदी की पालकी में विराजमान किया गया है और VNM TV के जरिए भगवान के दर्शन घर बैठे आज के खास मौके पर हम आपको करा रहे हैं। वडोदरा की राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़ और उनके साथ गायकवाड़ परिवार की दोनों बेटियां मौजूद, जो इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। हर वर्ष गायकवाड़ परिवार इस खास पारंपरिक शोभा यात्रा में शामिल होता है और वडोदरा की विरासत को आगे बढ़ाता है। विशेष रथ में भगवान विठलनाथ जी को सवार किया जाता है और खूबसूरत रूप से उनकी सजावट की गई है। सुंदर आभूषण, सुंदर वस्त्र उन्हें पहनाए गए हैं।
विठलनाथ जी मंदिर के पुजारी हरिओम रामकृष्ण व्यास इस पूरी परंपरा को धार्मिक रूप से निभाते हुए वडोदरा कांग्रेस के अध्यक्ष ऋत्विक जोशी भी इस मौके पर मौजूद है। भगवान विठलनाथ जी की आरती हो रही है। कांग्रेस के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत के अग्रणी भी इस खास मौके पर शामिल हुए हैं। यात्रा से पहले उनकी महाआरती हो रही है। के विशेष रथ में भगवान विठलनाथ जी सवार है और पारंपरिक रूप से हर साल इसी रथ में भगवान की शोभा यात्रा का आयोजन होता है। आज से हिंदू धर्म में चातुर्मास की भी शुरुआत हो रही है और अब 4 महीने मांगलिक कार्य शादी ब्याह जैसे हिंदू धर्म में वर्जित माने जाते हैं। भगवान विठलनाथ जी की शोभा यात्रा, जिसे वडोदरा में वरघोड़ों के नाम से जाना जाता है, उसमें शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं और भगवान विठलनाथ जी की शोभा यात्रा यहाँ से प्रस्थान करेगी। नाथ जी मंदिर से पारंपरिक रूप से पारंपरिक वाद्यों के साथ जो गायकवाड़ परिवार की शान है, उसी परंपरा उसी ऐतिहासिकता के साथ भगवान विठलनाथ जी की शोभा यात्रा का प्रस्थान और भगवान विठलनाथ जी के अद्भुत दर्शन वीएनएम टीवी पर घर बैठे आप कर रहे हैं। देवशयनी एकादशी का पावन अवसर और 4 महीने शयन अवस्था में जाने से पहले भगवान आज भक्तों को दर्शन देने के लिए वडोदरा के मार्गों पर निकल रहे हैं। हर वर्ष की परंपरा को 215वीं बार आज भी कायम रखा गया है। विठलनाथ जी को रथ में स्थापित किया जा रहा है और नगर भ्रमण पर उन्हें ले जाया जा रहा है। बहुत ही पारंपरिक रूप से इस पूरी परंपरा को हर वर्ष निभाया जाता है और भगवान विठलनाथ जी के आशीर्वाद आज वडोदरा के लोगों पर बरस रहे हैं। भगवान खुद भक्तों को दर्शन देने और आशीर्वाद देने आज वडोदरा के राजमार्गों पर भ्रमण करने निकल रहे हैं। ये विशेष रथ इसमें हर बार भगवान भ्रमण पर निकलते हैं। सोने चांदी से बना हुआ ये रथ जो घोड़ों से सज्ज है और हर वर्ष इसी रथ में भगवान नगर भ्रमण पर निकलते हैं। भक्त जो है प्रसाद ग्रहण करने के लिए, प्रसाद का लाभ लेने के लिए उतावले हो रहे हैं। ये प्रसाद की विशेष महत्ता है और आज जब धार्मिक कार्य में सारे लोग जुड़े हैं तब भगवान का आशीर्वाद प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। वडोदरा की इस ऐतिहासिक परंपरा में भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह भी शामिल हुए। सर, आज एक ऐतिहासिक यात्रा, शोभा यात्रा जो वडोदरा की परंपरा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बड़ौदा महानगर है, गुजरात राज्य का सांस्कृतिक पाटनगर है। आज देवपोड़ी 11 यानी आज के दिन से आने वाले 4 महीने तक कोई भी अच्छा कार्य, शुभ कार्य हम नहीं कर सकते। ऐसे आज के दिन जिसको फूका 11 भी कहा जाता है, ऐसे आज के दिन में यहाँ पे विठलनाथ जी वरघोड़ा यहाँ पर बड़ौदा में आप देख रहे हो, बड़ा सा प्रोसेशन है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित है। भगवान खुद दर्शन देने के लिए जब यहाँ पर पधारे हैं तो आज के दिन की सबको शुभकामनाएं देते हैं। और 215 साल से चली हुई ये परंपरा आज भी चालू है। ये बड़ौदा के लिए बड़े सौभाग्य की बात है।
भगवान विठलनाथ जी के रथ का प्रस्थान कराया जा रहा है। मांडवी के विठलनाथ जी मंदिर से शोभा यात्रा का प्रारंभ, जिसमें बड़ी संख्या में भाविक भक्त भी मौजूद। वडोदरा के जो पुराने लोग हैं, वडोदरा के जो पुराने शहर में रहते लोग हैं, वो इस शोभा यात्रा का महत्व बखूबी जानते हैं और हर साल उसी उत्साह के साथ ही आयोजन होता है। वडोदरा कांग्रेस के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव हमारे साथ है। आज एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा वडोदरा में आयोजित की जा रही है, क्या कहेंगे? सर सयाजीराव गायकवाड़ ने इस मंदिर की स्थापना करी। इस शहर के अंदर सुख शांति और समृद्धि बढ़े, इसलिए विठलनाथ भगवान की स्थापना करी। मेरा मानना है कि भगवान इस शहर के अंदर आशीर्वाद देने के लिए निकलते हैं और वर्षों से चली आ रही परंपरा, सर सयाजीराव गायकवाड़ के परिवार से कोई भी व्यक्ति पहली पूजा करता है और उसके बाद में ये मंदिर के दर्शन होते हैं। पारंपरिक रूप से ये शोभा यात्रा आयोजित होती है, जिसकी परंपरा हर साल वडोदरा उसी परंपरा के साथ निभाता है। वडोदरा कांग्रेस के अध्यक्ष ऋत्विज जोशी हमारे साथ है। ऋत्विज भाई, पुराने शहर की ये महत्वपूर्ण यात्रा आज आयोजित हुई है, क्या यादें हैं इसके साथ और क्या कहना चाहेंगे आज? भगवान विठलनाथ जी की ये रथ यात्रा है। सालों से परंपरागत वडोदरा में ये यात्रा निकलती है। आज देव पौड़ी दैव सैनी एकादशी, बहुत ही पवित्र दिन। आज से चातुर्मास का भी प्रारंभ होता है। जो कुंवारिका है उनके गौरी व्रत का भी प्रारंभ होता है और पूरी नगरचर्या पे भगवान श्री विठलनाथ जी निकलते हैं। वडोदरा के भक्तजनों को आशीर्वाद का, दर्शन का लाभ मिलता है। जैसे महाराष्ट्र में पंढरपुर में भगवान श्री विठलनाथ जी का मंदिर है, वैसे ही इस मंदिर का भी बहुत इतिहास रहा है। महाराजा के समय से इतना पुराना मंदिर, और सालों से एक भी साल ऐसा नहीं रहा कि ये मंदिर का भगवान विठलनाथ जी का यात्रा यहाँ निकला हो। अब देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग भी है, तो प्रभु चरण में प्रार्थना करता हूँ कि सबको भगवान का आशीर्वाद मिले। जय द्वारकाधीश। वक्रतुंड ग्रुप वडोदरा का ढोल का साथ बजाते हुए और एक छोटी सी बच्ची भी ढोल के ताल पर यहाँ भगवान विठलनाथ जी की आराधना कर रही है। भगवान विठलनाथ जी नगर भ्रमण पर प्रस्थान करते हुए मंदिर के पुजारी हरिओम रामकृष्ण व्यास हमारे साथ हैं, जो हर वर्ष इस परंपरा को आगे बढ़ाते आए हैं। आज देवपोड़ी एकादशी के दिन भगवान विठलनाथ जी का 215वां वरघोड़ा राजवी परिवार के पूजन अर्चन के बाद शहर के राजमार्गों पे भक्तों को दर्शन देने के निकला है। भक्त लोग भगवान को फूल प्रसाद हार चढ़ा के भगवान के आशीर्वाद ले रहे हैं। साथ में कई भक्त भगवान का रथ खींच के उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये वरघोड़े में सयाजी बैंड, दरबार बैंड है, जो सालों से मंदिर के वरघोड़े में आते हैं। मुस्लिम भाई है, लेकिन बहुत भक्ति भाव से हमारे भजन कीर्तन करते हैं। उसके साथ वक्रतुंड है, जैसे अपने बैंड है ट्रेडिशनल, जो पूरा वरघोड़े का वातावरण भक्तिमय कर रहे हैं। इसी तरह वरघोड़ा धीरे धीरे आगे जाएगा। ये वरघोड़ा दोपहर में 12:30 बजे केदारेश्वर महादेव पहुंचेगा। वहां पे हरिहर भेंट और मिलन होगा। वहां पे भी पूजन अर्चन और आरती होगी और बाद में 1:30 बजे ये वरघोड़ा वापिस मंदिर में 3 बजे परत आएगा। इस साल देवपोड़ी एकादशी के साथ मोहर्रम ताजिया विसर्जन का भी त्योहार है, तो उनको ध्यान में रखते हुए मंदिर का वरघोड़ा 2 घंटे जल्दी मंदिर में वापस आएगा। तो ये वरघोड़े में सभी को दर्शन करने के लिए आमंत्रण है। इसी के साथ मंदिर में आने के लिए आमंत्रण है
और मैं सभी इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया का आभार मानता हूँ मंदिर और देवस्थान ट्रस्ट की ओर से, कि जिनकी वजह से जो लोग मंदिर में नहीं आ सकते वो आपके टीवी चैनल के माध्यम से घर पे बैठे बैठे दर्शन करते हैं। आज दिन भर विभिन्न आयोजन, विठलनाथ जी भगवान के शोभा यात्रा के साथ साथ हरिहर का मिलन, इस तरह के पूरे आयोजन आज किए गए हैं और वडोदरा शहर बढ़ चढ़कर इस धार्मिक विधि में हिस्सा ले रहा है। भगवान विठलनाथ जी की शोभा यात्रा संपन्न हो रही है। आज दिन भर भगवान विठलनाथ जी के लिए अलग अलग धार्मिक आयोजन होंगे और आज से 4 महीने तक शुभ कार्य अब वर्जित माने जाएंगे हिंदू धर्म में, और उससे पहले वडोदरा शहर अपनी ऐतिहासिक परंपरा को निभाता हुआ। वीएनएम टीवी के जरिए घर बैठे भगवान विठलनाथ जी के दर्शन आज हमने आपसे करवाए हैं। आज देवशयनी एकादशी का पावन पर्व हिंदू धर्म में बेहद महत्व है और आज से 4 महीने तक जब मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं तब भगवान विठलनाथ जी के दर्शन का महत्व वडोदरा शहर जानता है। और वीएनएम टीवी के जरिए ये पूरा प्रसारण आप देख रहे हैं। वीएनएम टीवी देखते रहे। आज दिन भर के धार्मिक आयोजन भी वीएनएम टीवी पर भगवान विठलनाथ जी के आप देख सकते हैं। मोहर्रम के खास मौके पर मुस्लिम समुदाय ताजिया का विसर्जन करते हैं, लेकिन वडोदरा शहर में एक ताजिया ऐसा है जो तालाब के बजाय वडोदरा के पौराणिक बहुचराजी मंदिर में ठंडा किया जाता है और उसके बाद ये दफन होता है। वडोदरा में गायकवाड़ शासन के समय से नागरवाड़ा हकीम साहब के वाड़े में स्थापित किए जाते ताजिया तालाब में नहीं, लेकिन कारेली बाग के पौराणिक बहुचराजी मंदिर में मंदिर के पुजारी की पूजा अर्चना के बाद ठंडे किए जाते हैं। कौमी एकता के प्रतीक स्वरूप इस परंपरा को हिंदू मुस्लिम समुदाय सालों से मनाता आया है, जो इस बार भी निभाई गई। हकीम साहब के वाड़े के ताजिया धूमधाम के साथ बहुचराजी मंदिर पहुंचे, जहां पुजारी अमरीश कुमार ने ताजिया का स्वागत किया। मंत्रोच्चार के साथ ताजिया पर नारियल के पानी का छिड़काव कर ताजिया को ठंडा कर नारियल चढ़ाया गया। ताजिया ठंडा करने के बाद आजवा रोड पर करबला के मैदान ले जाया गया, जहां परंपरा और विधि विधान से उन्हें दफन किया गया। आज हम लोग जहाँ के ऊपर खड़े हैं, ये तकरीबन 600 साल पुराना ये मंदिर, और यहाँ के ऊपर हम इमाम हुसैन का जुलूस लेकर 10वीं का यहाँ के ऊपर ये बड़ौदा के लोग, ये आवाम लेकर आई है। ये मुसलमानों का और खासकर एक बहुत ही अजीम मुसलमानों का क्या पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा इवेंट है करबला का। और यहाँ के ऊपर हर फिरका, हर मजहब, और यही वजह है कि हमारे इस मंदिर के और तमाम जो पुजारी लोग हैं उन्होंने आके इस तादिये को ठंडा किया है। और इस मुल्क में अगर आप देखिए हुसैन मजलूम का पैगाम, मुझे याद है कि मैं बंगाल में था और उस बंगाल में मैंने देखा है कि हिंदू औरतें बाकायदा आज की तारीख में बहुत से ऐसी फैमिलियां हैं जो ब्राह्मण फैमिली हैं, वो बाकायदा अपने बच्चों को अगर छोटे हैं तो अपने बच्चों को पानी नहीं पिलाती हैं, अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं। और हमने पूछा कि क्यों? कहा जब तक हुसैन का ताजिया और हुसैन का नहीं गुजर जाएगा और वो ठंडा नहीं होगा, उस वक्त तक हम अपने बच्चों को दूध नहीं दें। क्यों? इसलिए कि करबला में हुसैन का बच्चा प्यासा था, और ये पूरा मामला प्यास न मजहब देखती है, न दीन देखती है, न किसी आदमी और विशेष वर्ग को देखती है, बल्कि प्यास हिंदू को भी लगती है, मुसलमानों को भी लगती है। तो ये जुलूस हम इसलिए निकालते हैं ताकि पता चले कि करबला में एक यजीद जो रावण के रूप में आया था, और हुसैन अगर देखा जाए तो जिस तरह से हमारे यहाँ हिंदुओं में राम शांति के प्रतीक हैं और रावण अशांति का प्रतीक है, वैसे ही
हुसैन अलैहिस्सलाम हर मजहब के लिए शांति का प्रतीक है, और हुसैन वाला, आजादारी करने वाला कभी भी आपको आतंकवादियों की भीड़ में नहीं दिखेगा। हमेशा वो शांति फैलाता दिखेगा, हमेशा अमन फैलाता दिखेगा। और इसीलिए शायद मुझे याद है कि इसीलिए, अगर इस बात को मैं आप तक पहुंचा दूं, इसीलिए महात्मा गांधी ने जब इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, तो उस आंदोलन में उन्होंने करबला की इस हिस्ट्री को पढ़ के कहा कि अगर मैं इस देश में आंदोलन ला सकता हूं तो मुझे इमाम हुसैन का रास्ता सबसे बढ़िया लगा है। ये हुसैन चूंकि शांति के प्रतीक हैं, और जिस शांति के साथ उन्होंने यजीद जैसे रावण को खत्म कर दिया, महात्मा गांधी जी ने हमारे इस देश को अंग्रेज जैसे रावणों से आजाद करके आज इस पूरे देश को आजाद कर दिया। अलीबाग स्थित आवेल सुप्रसिद्ध અને પૌરાણિક શ્રી બહુચરાજી મંદિરના પૂજારી વીરાન રમેશચંદ્ર તમામને જણાવું છું કે આજે મોહરમનું પર્વ હોવાથી પ્રતિવાર્ષિકની જેમ નાગાણવાડા સ્થિત હકીમ સાહેબનો જે ઇમામવાડો છે ત્યાં આગળ આ તાજિયા બેસાડવામાં આવે છે, અને પ્રતિવાર્ષિકની જેમ મોહરમના દિવસે આ તાજિયાને બહુચરાજી મંદિર ખાતે લાવવામાં આવે છે। ત્યારબાદ બહુચરાજી મંદિરના પૂજારી દ્વારા આ તાજિયા પર પંચદ્રવ્યોનો છંટકાવ કરી આ તાજિયાને ઠંડા કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ આજવા રોડ સ્થિત ગુલિસ્તાન એપાર્ટમેન્ટ છે એની પાછળ આ તાજિયાને દફનાવવામાં આવે છે। આ પ્રણાલી આશરે 250 વર્ષથી ચાલુ છે, અને હાલમાં પણ બહુચરાજી મંદિરના ગાદીપતિની 11મી પેઢી આ પ્રણાલી પ્રમાણે મુજબ કાર્ય કરી રહી છે। કદાચ વડોદરા કાં તો વિશ્વના કાં તો સમગ્ર ગુજરાતના આ એકમાત્ર એવા તાજિયા હશે કે જેનું વિસર્જન મંદિરના પૂજારી દ્વારા કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ આ તાજિયાને દફનાવવામાં આવે છે। गुजरात के सूरत में चुस्त कानून व्यवस्था के बीच मोहर्रम का पर्व मनाया जा रहा है। शहादत की रात को सूरत के झापा बाजार से ताजिया का प्रस्थान करवाया गया। सूरत के अलग अलग इलाकों के ताजिया झापा बाजार पहुंचे। सूरत के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत ने नारियल फोड़कर यहां से ताजिया का प्रस्थान करवाया। बड़ी संख्या में ताजिया को झापा बाजार लाया गया और फिर अपने स्थान पर वापस ले जाया गया। इस मौके पर ताजिया कमेटी और अग्रणियों द्वारा ताजिया का स्वागत किया गया। मुहर्रम के चलते पूरे सूरत में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत द्वारा चुस्त पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। सूरत सिटी में झापा बजार में ट्रेडिशनली जो पुलिस द्वारा नारियल फोड़ी ताजिया प्रोसेसन स्टार्ट करवामां आवे छे। तो आज बधा लोग अहींया हाजिर छे अने ताजिया स्टार्ट करवामां आवेला, अने आवतीकाले बपोर पछीथी तमाम जो ताजिया लोग 250 जेटला नाना मोटा ताजिया अलग अलग विस्तारों से निकली राजमार्गों पर आवशे, अने पछी जो है अपना ठंडा थईने जो है पोतपोताना विस्तार लोग जता रहेशे। तो एनी समग्र व्यवस्था खूब सारी रीते चाले एना माटे लगभग जो 4 कंपनी एसआरपी, एक कंपनी सीआईएसएफ ने जो है अने लगभग 4500 जेटला जो हमारा पुलिस जवानों, होमगार्ड जवानों, ट्रैफिक अलग थी जो है, अने आ सिवाय लगभग 350 हमारा अधिकारियों ज्वाइंट सीपी से मांडी पीएसआई तक आ बधा लोग जो तैनात रहे। ड्रोन कैमरा द्वारा आप जोई सको तो ड्रोन कैमरा हम लोग उपयोग करिए छे। एना साथो साथ जो है बॉडी वर्न कैमरा, सीसीटीवी कैमरा बधा रूट पर लागेला छे। अने आ वखते अमे धाबा पॉइंट पर जो है कि इमरजेंसी लाइटों पर मूकीए छे। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी पुलिस लाइटों पर रहे जो है, अने समग्र पूरी व्यवस्था सुपरविजन अलग अलग विस्तार में हमारा अधिकारियों करशे। अने क्राइम ब्रांच सोजीना टीमों एवा तत्व जो कौमी क्लास जाळवामां कोई तकलीफ उभा करशे एना उपर कार्रवाई करवा माटे आ लोग सजग छे। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है।
RR Signature Fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक व्हील वाली साइकिल लेकर यात्रा पर निकले साइकिल यात्री इन दिनों गुजरात से गुजर रहे हैं। गुजरात के भरूच के झगड़िया में साइकिल यात्री सानिद दिविजेड और हाशमी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। युवाओं को व्यसन से दूर रहने के संदेश के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक व्हील वाली साइकिल लेकर निकले केरला कुन्नूर के साइकिलिस्ट अलग अलग राज्यों से गुजर रहे हैं। अब तक इन्होंने 3700 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। ये दोनों साइकिलिस्ट एक व्हील वाली साइकिल पर अलग अलग स्टंट करते हैं और इन दिनों युवाओं को व्यसन मुक्ति का संदेश दे रहे हैं। सात 7000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकले साइकिल यात्री ने झगड़िया के रायसिंहपुरा में बालाजी हनुमान मंदिर में हॉल्ट कर हनुमान जी का प्रसाद भी लिया। इस मौके पर उन्होंने VNN टीवी के संवाददाता से खास बातचीत भी की। I am from Kerala Kannur and his name is Hashmi. He is also from Kerala Kannur. We started from Kanyakumari, I think December something. Now 4 months. Now I completed more than 3,700 kilometers, and it's my 3 years of dream to Kanyakumari to Kashmir by without front tire, and it's a difficult task. And we are carrying a message that is say no to drugs. And in our Kerala, most of the in my age of people are using drugs. That's why we are choose this message. And now India also, I think, suffering these issues because a lot of the people are using drugs, and that's why we choose this message. And it's a normal cycle to enter. We are actually going Umlingla Pass, most world highest motorable road. We are going there, and it's a normal cycle to enter is not possible. It's very difficult, and I'm going by without front tire, and it's maybe it's impossible. And it's my 3 years of dream, and I want to do something different. That's why I choose this. And he is carrying my luggages, and he is my co-driver, and he is doing such a great things for me because he's my right hand also. And more than 60 kgs weight he is carrying, and we have we will stay in tent, and we will put tent over in petrol pumps and mandir and masjid and dhaba. Where we get bathroom facilities, there will be stairs, and we have carrying gas cylinder and little all cooking items we have, and we have 3 jodi dress. We are carrying that 3 jodi dress and every toolkits
Now we started 4 months left, and we need 2 months need to reach there. And now we are completed 3,700 something kilometers. We want to cover more than 2,500 something again, and the total journey is 7,000. I think around 7,000 something. And I don't know is this possible. Maybe it's a try, fail or win, I don't know, but it's a just try. If I can win, it's my greatest achievement, and he is controlling my everything. He is handling my ride and my media also. गुजरात के वडोदरा में जेतलपुर रेलवे ओवरब्रिज एक बरसात में ही धुल गया है। डामर की सड़क तो ठीक, आरसीसी सड़क भी धुल गई है। कुछ ही दिनों की बारिश में सड़क में जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं और लोहे के सरिये दिखने लगे हैं। वहीं डामर के रोड पर भी गड्ढे पड़ गए हैं, जिसकी मरम्मत के लिए वडोदरा महानगर पालिका के पास समय ही नहीं है। अगर अभी भी मरम्मत नहीं कराई गई तो आगे सड़क और खराब हो सकती है, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार ने आवाज उठाई है। वडोदरा शहर में आवेल जे कहेवाय छे के जे रेलवे ओवरब्रिज है, आ रेलवे ओवरब्रिज पर हाल में तमे जोई शको छो जे गाबड़ा पड़ी गया छे, सळिया देखाई रह्या छे, એટલે કંઈક ને કંઈક લાગી રહ્યું છે કે આની અંદર મસ્ત મોટો ભ્રષ્ટાચાર થયો છે। 2011 ની અંદર જ્યારે આનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હોય ત્યારબાદ જે આજે 12 થી 13 વર્ષની અંદર જ આજે જે બ્રિજ છે, આ બ્રિજ જે ખરખડતી હાલતમાં જોવા મળે છે। ટૂંક સમય પહેલે પણ જે વડોદરા શહેરની અંદર એક બ્રિજનું ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું ત્યારે પણ ગાબડા પડવામાં પડ્યા। એટલે ખાસ કરીને બ્રિજ જે પણ અધિકારીઓ છે આ લોકોની કંઈક ને કંઈક રીતે ટકાવારીના કારણે કોન્ટ્રાક્ટરો લાલિયાવાડી કરી રહ્યા છે। હાલમાં જે બ્રિજ છે, બ્રિજ ઉપર જે કાંકરેટ વાપરવામાં આવે છે એની ઉપર જે કહેવાય છે કે ફરીથી એક ડામર પાથરી અને લાલી લિસ્ટિક લગાવવામાં આવી છે। એટલે ખાસ કરીને વડોદરા શહેરની અંદર ભ્રષ્ટાચારનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે। એક બાજુ મુખ્યમંત્રી સાહેબ ટકોર કરતા હોય કે ગુજરાતની અંદર સુરત અને અમદાવાદ આગળ છે ને વડોદરા પાછળ છે, તો વડોદરા પાછળ છે એનું મુખ્ય કારણ એક જ છે કે વડોદરા શહેરની અંદર સ્થાનિક અધિકારીઓ, સ્થાનિક નેતાઓ, સ્થાનિક જવાબદાર વ્યક્તિઓને કોઈ પણ જાતની નગરજનોની ચિંતા નથી। અને આ જ રોડ પરથી અહીંયાથી સાંસદ પણ જતા હોય છે, મેયર પણ જતા હોય છે, સાથે સાથે જવાબદાર અધિકારીઓ પણ જતા હોય છે, છતાં પણ આ તમામ લોકોનું ધ્યાન કેમ નથી જતું એ સમજાતું નથી। એટલે કંઈક ને કંઈક રીતે લાગી રહ્યું છે કે કોન્ટ્રાક્ટરોને છાવરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। અને આપના મીડિયાના માધ્યમથી અમારી અપીલ છે કે જે આ કોન્ટ્રાક્ટર છે તેને તાત્કાલિક ધોરણે નોટિસ આપવામાં આવે અને બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવે તેવી અમારી खास मांगनी है। गुजरात के जूनागढ़ के भैसान तालुका में मालीदा गांव है, जहां बीती रात 4 शेरों ने आतंक मचाया। शेरों ने शिकार की खोज में रात को 3 पशुओं को मार डाला और 3 पशुओं को घायल किया। गांव में रात के अंधेरे में शेरों के हमले से यहाँ के लोगों में डर का माहौल देखने मिल रहा है। जंगलना सिंह वारंवार अमारे आ रीते नुकसान करे है। लाख रुपयानी भેં હોય તો મારી નાખે તો જંગલવાળા અમને 15 થી 20 હજાર રૂપિયા માન આપે। અને એક તો અમારે મોટો તકલીફ પાવરની થઈ ગઈ। અમારે પાવર જે પહેલાં હતો દિવસ પારીનો એ રીતે ગોઠવી દઈએ ને તો અમારે આ પ્રોબ્લેમ ન થાય। હર વખતે દીપડાને હાવજ અમારા ઘર ઉપર હુમલા કરી નાખે। એટલે અમે જો વાડીએ આવી જઈએ તો વાંહે હાવજ આવીને પશુને મારી નાખે અને વાડીએ બીતા બીતા પાણી વારતા હોય। હાવજ બસ ભટકે મોટર બંધ કરીને ઘેરે ભાગવું પડે। આજે 5 મારી નાખ્યા છે અને 2-3 ઘાયલ છે। એ જંગલ ધારા વૈયા ગયા સારવા માટે। સિંહ હતા 4 અહીંયા આપણે ઘેરે આવ્યા હતા, બીજા ગામમાં 2-3 હતા। ગામમાં મારણ કર્યા 4 અને 2-3 ને સૂથી નાખ્યા। એક આપણે અહીં વાડીમાં કરી નાખ્યો આપણે ઘરે। આ વર્ષે આપણે હતો ને 8-8 કલાક આપણે આપી દઈએ ને દિવસનો તો આ પ્રોબ્લેમ ન રહે। गुजरात के वडोदरा शहर के कई इलाकों में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस पेट्रोलिंग के अभाव में चोर सोसाइटी में सरेआम ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी ही एक घटना कुछ दिनों पहले पोलो ग्राउंड निकट की राजदीप सोसाइटी में घटी, जहां बंद मकान को तोड़ने की कोशिश की गई, जिससे परेशान सोसाइटी के लोगों ने पुलिस पेट्रोलिंग की मांग की है। यहाँ पे एक घर का ताला टूटा है, कल सुबह पता चला। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, लेकिन पुलिस की ओर से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अभी भी पेट्रोलिंग वगैरह कुछ शुरू नहीं किया उन्होंने। यहाँ पे काफ़ी विधवा बहनें रह रही है, काफ़ी लेडीज़ के बच्चे बाहर रह रहे, तो सब लोग अकेले भी रह रहे हैं यहाँ पे। तो उन लोगों को अभी डर लग रहा है, क्योंकि अभी 6 महीने में 3 बार ऐसा हुआ है इस सोसाइटी में, इसलिए सब लोग अभी डर रहे हैं। लगेगा ही ना, ऐसा ही कोई सपोर्ट ही नहीं है, फिर क्या बोलेंगे हम। तो हमारे यहाँ
कुछ दिन पहले इसी मकान के अंदर चोरी का प्रयास करा गया, वो सफल नहीं रहा। और ये पहला प्रयास नहीं था, इससे पहले 2 बार इसी सोसाइटी में इसी तरीके के प्रयास हुए। इसकी वजह से सोसाइटी के जितने भी रहने वाले लोग हैं उनके अंदर भय का माहौल है। इस सोसाइटी के अंदर कितने घर ऐसे हैं जिसके अंदर बुजुर्ग लोग रहते हैं। अगर बुजुर्ग लोग अकेले अंदर है और कुछ असामाजिक तत्व घर में घुस जाते हैं तो बुजुर्ग लोग तो गए, वो अगर चिल्लाएंगे तो असामाजिक तत्व उनका गला दबा देंगे। तो लोगों के अंदर पूरा भय का माहौल है। हमारे लोग पुलिस को भी अप्रोच किए हैं। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय है, पुलिस क्या कर रही है वो हमें पता नहीं है, पर हमारे सोसाइटी के अंदर संपूर्ण तरीके से भय का माहौल खड़ा है। और ख़ास करके बहुत से मकान ऐसे हैं जिसके अंदर बुजुर्ग लोग निवास करते हैं। क्या मांग है आपकी? मेरी ये मांग है कि पुलिस अपनी ओर से कुछ ऐसी कार्रवाई करे जिससे इस सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके अंदर से वातावरण भय मुक्त हो। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कल गुजरात में चांदीपुरा वायरस के 14 संदिग्ध मामले थे, जिसमें से करीब 8 से 9 बच्चों की मौत भी हुई है। इन सभी के सैंपल्स पुणे भेजे गए हैं। ચાંદીપુરાની ગઈકાલે મેં પ્રેસની અંદર આખી વિગતો આપી છે અને બહુ ડિટેલ વિગતો આપી છે અને આજે પેપર્સની અંદર પણ આ કેસો ગઈકાલે 14 જેટલા હતા ને એમાંથી મૃત્યુ 8 થી 9 જેવા હતા। હવે કયા કારણોસર એ તો એની વિગતવાર તપાસ કરી અને ચાંદીપુરમનો જે રોગ છે સેન્ડ ફ્લાય એટલે કે રેતીની માખથી આ થતો રોગ, એ રોગ હજુ એના જે નમૂનાઓ ખરા એ આપણે પૂના મોકલ્યા છે। અત્યારે આપણે સસ્પેક્ટેડ ગણીએ છીએ કારણ કે એના લક્ષણો આને મળતા આવે છે, એટલે આવે એટલે કન્ફર્મ આપણે કરીશું। પરંતુ આ ચાંદીપુરમને મળતા પ્રકારનો એક રોગ અત્યારે પીડિયાટ્રિશિયનો આપણને કહી રહ્યા છે। અરે જ્યાં આગળ અને ખાસ કરી મધ્ય ગુજરાતની અંદર આ રોગનું પ્રમાણ આપણને વધારે જોવા મળ્યું છે, પરંતુ દરેક જગ્યાએ ઘરોમાં જે ઘરો જે માટીના ઘરો હોય, લીંપણના ઘરો છે, એવા ઘરોમાં રહેલી તિરાડોમાં આ માખીઓ હોય છે। આ જે એના જીવાણુઓ હોય છે, કીટકો, એ એમાં વસતા હોય છે। ત્યાં આગળ એને પૂરવાનું કામ, જંતુનાશક દવા કરવાનું નાખવાનું કામ, આ બધા કામો સાથે લગભગ 4546 જેટલા ઘરમાં કામગીરી કરી ચૂક્યા છીએ અને આશરે 44,000 જેટલા લોકોને પણ આમાં આપણે આવરી લીધા છે આ તપાસમાં। ખનન વિષયમાં ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે જે ત્રણ જગ્યાએ જ્યાં આગળ બખોલ હતી અથવા તો જેને કહી શકીએ કે કેવ્સ હતી, એમાં આ 3 મજૂરોનો મરવાનો જે ઇસ્યુ બન્યો, તપાસ એમને સોંપી દીધી છે, તપાસ ચાલુ છે અને તપાસના અંતે કોઈ પણ વસ્તુ પુરાવા વગર કોર્ટમાં જવાતું નથી, એટલે પુરાવા મેળવવાની કાર્યવાહી, તપાસની કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड ब्लेड्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area,
a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms लो पहलो bedroom with an amazing balcony view. साथ the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. मानसून के मौसम में वडोदरा में पानी जनित बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वडोदरा के कई इलाकों में हैजा, टाइफाइड, उल्टी, दस्त के मामले सामने आए हैं। ऐसे में वडोदरा के दंतेश्वर से तरसाली इलाके के पानीपुरी के ठेलों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा चेकिंग की गई और अखाद्य पदार्थ को नष्ट किया गया। वडोदरा के कई इलाकों में स्वास्थ्य विभाग इस तरह की जांच कर रहा है। दंतेश्वर से तरसाली के बीच पानीपुरी बेचने वाले ठेलों की जांच कर सड़े हुए आलू, चने, पानी पूरी की पूरी इत्यादि का नाश किया गया। साथ ही 10 दिनों तक इन सभी व्यापारियों को ठेला नहीं लगाने की सूचना दी गई है। અત્યારે જે રોગચાળાનો પરિસ્થિતિના કારણે આપણે છેલ્લા 2 દિવસથી એના અગાઉથી પણ આપણે પાણીપુરીનું ચેકિંગ કરવામાં આવે છે। પાણીપુરીમાં ખાસ કરીને જે પાણી વપરાય છે તેની પરિસ્થિતિ બરાબર ના હોવાના કારણે તેમજ જે અંદર જે બટાકા અને બધા ખરાબ વાપરવાના કારણે હમણાં આપણે પાણીપુરી તમામ વિસ્તારમાં ચેકિંગ બંધ કરાવે છે। તેમાં લગભગ 200 લીટર જેટલું પાણીનું ડિસ્ટ્રોય કરેલું છે। આજે 2 ટીમો, એક ટીમ સંગમ મહાવીર રોડ વિસ્તારમાં છે, બીજી ટીમ અત્યારે દંતેશ્વરી તરસાલી વિસ્તાર તમામ કવર કરવામાં આવશે। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नाहरगढ़ नगर की मुस्कान ने सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर बड़ी सफलता हासिल की है। छात्रा को लगातार 3 बार असफलता के बाद यह सफलता हासिल हुई है। नाहरगढ़ नगर में जनरल स्टोर्स और स्टेशनरी की दुकान संचालित करने वाले दिलीप कुमार गुप्ता की बेटी मुस्कान गुप्ता ने सीए बनकर नगर और परिवार का नाम गौरवान्वित किया है। मुस्कान को यह सफलता 3 बार असफल होने के बाद मिली। लगातार अपने प्रयासों से इस बार सफलता हासिल कर मुस्कान ने सीए की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसका श्रेय माता पिता, परिवार और शिक्षकों को दिया है। मैंने अपनी पढ़ाई 1st से 8th तक आदर्श इंडियन स्कूल नाहरगढ़ से पूरी की। उसके बाद मैंने अपनी 9th-10th की पढ़ाई कन्याशाला गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नाहरगढ़ से पूरी की। उसके बाद मेरा सिलेक्शन 10th टॉपर रही मैं, तो सुपर 100 इंदौर मलाराश्रम में मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ से मेरे को टीचर से प्रेरणा मिली कि मुझे 12th के बाद सीए करना चाहिए, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन आफ्टर सीए इंदौर से, आफ्टर 12th इंदौर से ही स्टार्ट की और वहीं से मैंने अपनी प्रिपरेशन पूरी की। इस बीच मेरे को बहुत सारी असफलताएं भी मिली हैं, तो मैंने धीरे धीरे अपनी प्रेरणा प्रयास नहीं छोड़ा। अपने मम्मी पापा को देखकर, अपने मम्मी पापा से दूर रहकर, बहुत मेहनत करने के बाद मैं आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ और फाइनली मैं आज सीए मुस्कान गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुकी हूँ। इस पूरी चीज़ को श्रेय किसको दिया जाएगा? मैं अपना इस चीज़ का श्रेय अपने मम्मी पापा, बड़े पापा, अपने गुरुजनों और अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को देना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है, मुझे बहुत प्रेरणा दी है और हर वक्त मेरी सहायता की है। गुजरात पुलिस की निलंबित कांस्टेबल नीता चौधरी को आखिरकार एटीएस ने अरेस्ट कर लिया है। कच्छ में शराब तस्कर के साथ पकड़े जाने के बाद नीता चौधरी को निलंबित कर दिया गया था। एक मामले में बेल मिलने के बाद नीता चौधरी फरार हो गई थी, जिसका खुलासा तब हुआ जब सेशन कोर्ट ने बेल खारिज कर दी। इसके बाद कच्छ जिला पुलिस के साथ एसओजी और लोकल क्राइम ब्रांच नीता चौधरी की खोजबीन कर रही थी। आखिर में गुजरात एटीएस ने सीआईडी क्राइम ब्रांच में कांस्टेबल नीता चौधरी को खोज निकाला है। नीता चौधरी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
हालांकि याचिका के सूचीबद्ध होने से पहले एटीएस ने नीता चौधरी को पकड़ा है। नीता चौधरी को युवराज सिंह जाडेजा नाम के एक शराब तस्कर के साथ अरेस्ट किया गया था। मुस्लिम समुदाय द्वारा मोहर्रम के 9वें चांद पर ताजिया जुलूस के भव्य आयोजन कर कत्ल की रात मनाई जाती है। वडोदरा शहर के सभी इलाकों से मुस्लिम समुदाय द्वारा बनाए गए ताजियों के जुलूस निकाले गए। कत्ल की रात मनाते हुए सैकड़ों ताजिया जुलूस वडोदरा शहर में निकाले गए, जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के साथ साथ सभी कौम के लोग जुड़े। पुराने वडोदरा शहर में मुस्लिम बिरादरों द्वारा याकुतपुरा, मच्छीपीठ, मेमन कॉलोनी, बावामनपुरा, पानी गेट इलाके से ताजिया के भव्य जुलूस निकाले गए। पुराने वडोदरा शहर के साथ साथ वडोदरा के तांदलजा इलाके में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग निवास करते हैं। यहाँ भी सुंदर अद्भुत रंग बिरंगी ताजियाओं की स्थापना की गई है, जिसके जुलूस कत्ल की रात के मौके पर निकाले गए। रंग बिरंगी और लाइट से सुसज्ज ताजिया को देखने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के साथ साथ सभी कौम के लोग मौके पर उमड़ पड़े। इस मौके पर डीसीपी अभय सोनी की अगुवाई में चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया। मुहर्रम के त्योहार को ध्यान में रखते हुए कत्ल की रात को का कार्यक्रम यहाँ तांदलजा में चल रहा है। तो जेपी रोड पुलिस स्टेशन के सामने जो पत्रकार 4 रास्ता है, वहाँ पे जो मस्जिद आई हुई है, मस्जिद के आगे सभी ताजिया को रखा गया है। अभी यहाँ पे एक साथ दुआ का पढ़ने में आएगी और दुआ पढ़ने के बाद सभी ताजिए अपने स्थान पर रिटर्न हो जाएंगे और कल जो है मुहर्रम का त्योहार यहाँ पे मनाया जाएगा और शांति से चल रहा है। पुलिस का पूरा बंदोबस्त यहाँ पे रखा गया है। शांतिपूर्ण माहौल में तांदलजा में कत्ल की रात के मौके पर ताजिया जुलूस निकाले गए और इस मौके पर इमाम हुसैन की शहादत का मातम मनाया गया। सभी ताजिए यहाँ पे ऑलरेडी आ गए हैं और हम लोग यहाँ पे कुरान ख्वानी करके और देश के लिए दुआ करके, अमन की दुआ करके ने यहाँ से वापस हम लोग खुद के विस्तार में वापस जाने वाले। मुहर्रम के 9वें चांद यानी कत्ल की रात है, इमाम हुसैन के शहीद का 9वें चांद। तो आज विस्तार तांदलजा विस्तार के सभी ताजिया 24 ताजिया अलग अलग विस्तार में से निकलते हुए यहाँ पत्रकार आए हैं और इंशाल्लाह सब ताजिया इकट्ठा होने के बाद यहाँ दुआ होगी और दुआ के बाद सब अपने अपने विस्तार में सब ताजिया ले जाएंगे। गुजरात के महसाणा में भी इस्लाम धर्म के पवित्र त्योहार को उत्साह के साथ मनाया गया। यहाँ शांतिपूर्ण रूप से ताजिया जुलूस आयोजित किए गए, जिसमें अलग अलग जगह से आए हुए ताजिया का जुलूस निकाला गया। मुहर्रम इमाम हुसैन और करबला के 72 शहीदों की याद में सालों से ये पर्व मनाया जा रहा है। इसी के तहत महसाणा में निकले ताजिया लोगों में आकर्षण का केंद्र बने। ताजिया कमेटी द्वारा अलग अलग जगह से ताजिया जुलूस निकालकर मुहर्रम के पर्व को मनाया गया। कौमी एकता की भी मिसाल यहाँ देखी गई, जहाँ हिंदू मुसलमानों ने और अन्य कौम के लोगों ने साथ मिलकर ताजिया के जुलूस देखे और सुख समृद्धि की कामना भी की। મહેસાણાની 7 જગ્યાઓથી મોહરમનું जुलूस કાઢવામાં આવે છે। આ તમામ 7 જગ્યાઓથી जुलूस નીકળી આઝાદ ચોકથી પછી પરત થઈને પોતપોતાના વિસ્તારમાં અને ખાસ કરીને મહેસાણા કસ્બાની અંદર
બહુ મોટા તાજિયાનું જુલુસ, બહુ મોટી પબ્લિક, બહુ મોટી તાદાદના અંદર તમામ કોમ્યુનિટીને સાથે રાખી કસ્બા વિસ્તારના પ્રમુખ અયુબભાઈની હાજરીમાં એમની નિયુક્તિમાં આ એક પર્વ ઉજવવામાં આવે છે અને તમામ કોર્પોરેટર, તમામ પોલીસ અધિકારીઓ આના અંદર જોડાવે છે અને આ જુલુસની અંદર અખાડાનું કર્તવ્ય, પાણીની પરબનું અનેક પ્રતિક્રિયા કરવામાં આવે છે, તમામ પ્રસાદીનું પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે અને એ સમાપન થયા પછી તાજિયાનું જુલુસ સાંજે કસ્બા વિસ્તારના તમામ જે બી 7 જગ્યાઓ છે એ તમામ જગ્યાએ પરત કરવામાં આવે છે અને આ પર્વનું समापन એ રીતે થાય છે। गुजरात के अमरेली में पानी जनित बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। कॉलेरा, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों ने फन उठा रखा है। अमरेली के सरकारी और निजी अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। इस मामले डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने इन बीमारियों से बचने पर जानकारी दी है। अमरेली जिला में मुख्य जिला आरोग्य अधिकारी तरीके डॉक्टर RM जोशी हूँ अत्यारे फरज पर छूं। अत्यारे ચોમાસાની सीजन में वरसाद लगभग बधी जग्याए खूब सारा प्रमाण में और सार्वत्रिक वरसादनो राउंड शुरू थयो छे एटले आपणे पाणीजन्य रोगों बाबते थोड़ी तकेदारी राखवी जरूरी बने छे कारण के वोटर ब्रीडिंग थशे एटले पाणीजन्य रोगों कोलेरा, कमळो, टाइफोइड जेवी थवानी शक्यताओ रहे। तदुपरांत मॉस्किटो ब्रीडिंग पण थशे एना कारणे वाहकजन्य रोगों जेवा के मेलेरिया, चिकनगुनिया, डेंग्यू आ बाबते पण आपणे सावचेती राखवानी रहे छे। એટલે જાહેર જનતાને આ માધ્યમ દ્વારા હું અપીલ કરું છું કે ખાસ તો પહેલેથી આપણે આરોગ્યની બાબતમાં શરૂઆતથી જોઈએ તો આપણા ઘરની અંદર કુંડા છે, કુંજા છે અથવા તો જે ફ્રીજ છે એમાં પાણી ભરાઈ ન રહે, એમાં મોસ્કીટોનું બ્રીડિંગ ન થાય। ઇન્ડોર મોસ્કીટો બ્રીડિંગ થાય તો એ ડેન્ગ્યુ જેવા રોગો માટે જવાબદાર હોય છે। બીજી વસ્તુ, ઘરની આજુબાજુ જો કંઈ પાણી ભરાયેલું હોય તો એ ત્યાં બળેલું ઓઇલ નાખવામાં આવે, પાણીને વેવડાવી દેવામાં આવે અથવા તો એમાં જો કાયમી પાણીનું કલેક્શન રહેતું હોય તો એમાં ગપ્પી કે ગાંબુસિયા ફિશ નાખવામાં આવે છે। આ કામગીરી અમારી હેલ્થ ટીમ દ્વારા પણ રેગ્યુલરલી કરવામાં આવતી હોય છે અને એ અત્યારે ચાલુ છે। તે ઉપરાંત નિયમિત સર્વેલન્સની કામગીરી કે જેમાં હેલ્થની ટીમ મેલ વર્કર, ફિમેલ વર્કર, આશાબેન એ ઘરે જઈને દરેક ઘરે તપાસ કરીને જો તાવ આવતા હોય તો તેની સ્લાઇડ લે, એની તપાસ કરવામાં આવે અને યોગ્ય ઇમિડિયેટલી एनी ट्रीटमेंट सारवार शुरू करवामां आवे। गुजरात के सूरत में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सूरत ताजिया कमेटी द्वारा शहर के राजमार्ग भागल पर एकता के प्रतीक समान मंच का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, उच्च पुलिस अधिकारियों के साथ साथ हिंदू मुस्लिम अग्रणियों की भी उपस्थिति रही। इस मौके पर सभी ने कौमी एकता की मिसाल कायम रखने पर जोर दिया। ताजिया विसर्जन के खास मौके पर सूरत में ताजिया कमेटी ने ये विशेष आयोजन किया, जिसमें सूरत के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत, पूर्व केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश, सूरत के मेयर समेत के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। आज ताजिया का जो मुख्य प्रोसेसन चल रहा है तो भागड़ में सभी जितने भी शहर के आगेवान हैं जैसे मेयर श्री, संसद सभ्य श्री, MLA श्री, हमारे गणपति जी विसर्जन जो कमेटी के चेयरमैन श्री और अपने हमारे मुस्लिम आगेवान कदीर भाई रायदा जी, पुलिस के अधिकारी, सभी लोग यहाँ पे जो पहले 10 ताजिया है उनको ट्रॉफी दी गई और जिससे एक डिसिप्लिन का भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जो पहले आएगा उसको ट्रॉफी देके इनायत किया जाएगा। और उसके अलावा पूरे विस्तार में पूरा जो समग्र विस्तार है जहाँ से ताजिया का प्रोसेसन निकलना है वहाँ पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट अच्छे से है और साथों साथ जो ताजिया कमेटी के मेंबर है और जो मुस्लिम आगेवान है और उन सभी का भी उन्होंने खुद अपने आप को उनके उस जगह पर रखा हुआ है जिससे स्मूथली प्रोसेसन को समय से पूर्ण किया जा सके। मौसम भी अच्छा है और सभी के साथ सहकार से पूरा प्रोसेसन खूब अच्छे से पूर्ण किया जाएगा। गुजरात के वडोदरा जिले के शिनोर में मुस्लिम बंधुओं ने इमाम हुसैन की आस्था को ताजिया जुलूस के रूप में व्यक्त किया। मुहर्रम के 10वें चांद के मौके पर शिनोर में ताजिया की छोटी बड़ी दर्जनों सवारियां निकाली गयी। मुहर्रम के महीने से मुस्लिम समुदाय के नए वर्ष की शुरुआत होती है और हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में सालों से ताजिया जुलूस निकालने की परंपरा है। इसी के तहत शिनोर के सादली में भी आज उत्साह का माहौल देखा गया, जिसमें मुस्लिम बंधुओं के साथ साथ सभी कौम के लोग बड़ी संख्या में जुड़े।
मुहर्रम के 10वें चांद पर ताजिया विसर्जन की मुस्लिम समुदाय की परंपरा है, जिसके तहत आज वडोदरा में भी ताजिया विसर्जन किया गया। वडोदरा के सरसिया तालाब में आज दोपहर से ही छोटे छोटे ताजिया का विसर्जन शुरू किया गया, जो देर रात तक चला। वडोदरा के अलग अलग इलाकों से मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अपने ताजिया लेकर सरसिया तालाब पहुंचे और तालाब में विधि विधान के साथ ताजिया का विसर्जन किया। ये त्योहार करबला के शहीदों की शहादत में मनाया जाता है। शोक के प्रतीक स्वरूप ताजिया की स्थापना की जाती है और 10वें दिन ताजिया का विसर्जन कर अल्लाह ताला से सुख समृद्धि और अमन चैन की दुआ मांगी जाती है। आज भी बड़ी संख्या में अलग अलग इलाकों से आए हुए ताजिया का विधि विधान के साथ विसर्जन किया गया। તાજા જુલુસ ને વિસર્જનનો કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યો છે અને આના ભાગરૂપે તમે જોઈ શકશો સરસિયા તલાવમાં મહાનગરપાલિકા અને તાજિયા કમિટીના આયોજકો દ્વારા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે। અત્યાર સુધી લગભગ 20 તાજિયાઓની વિસર્જન થઈ ચૂક્યા છે અને કેટલાક તાજિયાઓ માર્ગ ઉપર નીકળેલા છે અને એમના જુલુસ જ્યારે અહીંયા પહોંચે વિસર્જન માટેનું સારા એવા આયોજન કરી છે। પોલીસ અધિકારીઓ, મહાનગરપાલિકાના ટીમ, તાજિયા કમિટીના વોલન્ટિયરો અને દરેક તાજિયા સાથે આવતા એમના આયોજક અને એમના ટીમ એમના સંકલનથી આ વિસર્જન કાર્યક્રમ એક સુરક્ષિત માહોલમાં એમના પરંપરાગત રીતે એનું વિસર્જન કરી શકે તે માટેનું આયોજન છે। આપણે ત્યાંના લોકોને પણ આપણે અપીલ કરીએ છીએ કે સુરક્ષા ने ध्यान राखो અને તમારા ધાર્મિક કાર્યપદ્ધતિ અનુસાર તમે વિસર્જન સંપન્ન કરાવો તો સમુદાયની સુરક્ષાને પણ ધ્યાને રાખીને ખાસ કરીને જે મહિલાઓ છે, બાળકો છે, વૃદ્ધો છે આ પાણીની નજીક ના જાય અને આખું કાર્યક્રમને દૂરથી નિહાળે એ રીતે લાઇટિંગનું પણ આયોજન છે। પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમથી સાંભળી શકે છે, દૂરથી જોઈ શકે છે। તો મને વિશ્વાસ છે કે આવતા 3-4 કલાકમાં ખાસ કરીને જે તાજા વિસર્જનનો કાર્યક્રમ છે શાंतिपूर्ण રીતે संपन्न થશે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।